तुमच्या पापा को कॉल कर। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। Rahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most gracious. Today the topic of discussion is the 2 by 2 table. My name is Muhammad Abdullah Bajwa. So what are the uses of the 2 by 2 table? As we discussed in the previous lecture, there are some attributes which we derive from the 2 by 2 table. These are the odds ratio, relative risk ratio, or the risk ratio. There are the two names for the same thing, so you should know about the synonymous word used here. So it helps in the determination of the odds ratio, also known as the cross product ratio. The second thing is that relative risk or the risk ratio. Then we have the positive predictive value, negative predictive value, sensitivity and specificity. The prevalence of the disease uh, also be calculated from this 2 by 2 table. This is the basic table, a basic statistical tool used in the epidemiology. So it is also known as the contingency table. 2 by 2 table also known as the contingency table. It is used to display the frequency of the variables in the statistics to organize and display the frequency of variable. So don't get confused by what is contingency table. 2 by 2 table is also known as the contingency table. So this is the basic traditional 2 by 2 table display here. On y-axis there is exposure or the risk factor. On the x-axis on the top there will be the outcome. Either the patient suffer from the disease or the patient is healthy. Then we have the on the extremes of the right side there will be the total. So a plus b and the c plus d. Similar on the bottom there will be the a plus c. Eventually the product will be equal to the initial values. So ये हमारे पास बेसिक टेबल कंटिजेंसी टेबल है. पिछले लेक्चर में भी जिन्होंने पिछला लेक्चर ऑड्स रेशो रिलेटिव रिस्क रेशो का नहीं लिया हुआ, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू दोज इंडिविजुअल्स टू फर्स्ट वॉच दैट ऑड्स रिस्क और द odds ratio or the relative risk ratio video, then move to this video. So हमने पीछे देखा था कि ये जो टेबल है इसके अंदर वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, रिस्क फैक्टर या हमारे पास एक्सपोजर होता है. ऑन द एक्स एक्सिस देयर विल बी द on the y axis there will be the exposure and on the x axis on the top there will be the outcome. So outcome होगा या नहीं होगा, फिर हम टोटल कर लेते हैं a plus b, because in the total in you see that in the रिलेटिव रिस्क रेशो और द रिस्क रेशो टोटल हमें करना पड़ता है, तो हम एक टोटल का बॉक्स रख देते हैं. अगर नहीं भी आप करेंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ आउटकम और नो आउटकम वाले भी दो बना देंगे कॉलम्स, तो ठीक हो जाएगा काम. बिकॉज ट्रेडिशनल 2 by 2 टेबल हैव द 2 by 2 टेबल को 2 by 2 क्यों कहते हैं, because it have two rows and the two columns, that why it will be known as the 2 by 2 table. So अगर आप ये नहीं करेंगे तब भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर कर दें तो ज़्यादा बेहतर बात है. ये टोटल इस तरीके करके, इसमें मुश्किल वाली बात ही नहीं है. देन in the last lecture I discuss about the odds ratio and the relative risk. In today's lecture I discuss about the positive predictive value, negative predictive value. What do you mean by the positive predictive value, what do you mean by the non negative predictive value, and what is the sensitivity, what is the specificity. In today's lecture I discuss about these things. So what is the sensitivity? The ability of the test to detect
people who actually have the disease is known as the sensitivity. मतलब सेंसिटिविटी क्या है कि अगर 100 पेशेंट है और हमने एक टेस्ट अप्लाई की है, स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया है, तो अगर वो सारों को, जितने भी डिजीज़ पीपल हैं उनको अगर डिटेक्ट कर लेता है कि जिनको डिज़ीज़ है उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। क्या हमारे पास कि एक टेस्ट है वो अगर डिज़ीज़ पीपल को डिटेक्ट कर लेता है, जिनको डिज़ीज़ है उनका टेस्ट वो पॉजिटिव दे देता है, कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये उस टेस्ट की उस सेंसिटिविटी, मतलब वो सेंसिटिविटी रिकॉर्ड कर रहा है। बाकी हमारे पास आता है स्पेसिफिसिटी, द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दोज पीपल हु डू नॉट हैव द डिजीज़। सो एक ऐसा टेस्ट जो उन पीपल को डिटेक्ट करे जिनको डिजीज़ नहीं है, उनको अगर वो नेगेटिव दे देता है तो हम कहते हैं हम टेस्ट की स्पेसिफिसिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। देन वी आर द पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड द नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। तो सेंसिटिविटी क्या था, सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव जो पीपल है ना उनको अगर डिटेक्ट कर रहा है एक टेस्ट के जिनको डिजीज़ है, और उनको अगर एक स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव दे देता है, उनको डिटेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा है, सेंसिटिविटी। और एक ऐसा टेस्ट उन पीपल को, जो उन लोगों को डिटेक्ट कर रहा है जिनको डिजीज़ नहीं है, यानी ट्रू नेगेटिव को डिटेक्ट कर रहा है, तो वो हम क्या कहते हैं, ये स्पेसिफिसिटी है। अब पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है, likelihood that a person with a positive test result truly have the disease। ये आगे इसकी एक बहुत ही अच्छी एक स्लाइड है, तब उससे सही समझ आती है कि पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ये है कि आप फिजिशियन और आप अपने ओपीडी के अंदर बैठे हुए हैं, एक पेशेंट को आप स्क्रीनिंग टेस्ट लिख के देते हैं, उसका वो टेस्ट आ जाता है पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव के अंदर आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो ट्रू पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वाकई ही इसको डिजीज़ है, टेस्ट उसका पॉजिटिव आ गया, और अब हम देखना चाह रहे हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वाकई ही इसको ये डिजीज़ है, तो ये हम क्या कहेंगे कि इसको पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। लाइकलीहुड दैट अ पर्सन विद अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट ट्रूली हैव द डिजीज़। अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, दिस डजेंट मीन कि उसको डिजीज़ है, इट मे बी द फॉल्स पॉजिटिव, वो फॉल्स पॉजिटिव भी तो हो सकता है। तो वो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट द पर्सन हैव अ डिजीज़ इन एक्चुअल मैनर्स और नॉट, दिस इज नोन एज द पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। लाइक द सेम वे अराउंड आप देख लें कि नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है। अगर एक पेशेंट का हमारे पास टेस्ट आ जाता है नेगेटिव, तो लाइकलीहुड दैट अ पर्सन विद अ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट ट्रूली डज नॉट हैव द डिजीज़। तो एक पेशेंट का आ जाता है टेस्ट नेगेटिव, उसी तरीके जिस तरीके पॉजिटिव का था। अगर एक पेशेंट का ओपीडी में आप बैठे हैं, फिजिशियन है, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है, नेगेटिव आ गया है, तो कितने प्रोबेबिलिटी है कि वाकई ही ये टेस्ट नेगेटिव है और उसको डिजीज़ नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। अब देखें, ये स्लाइड है जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को समझने के अंदर हेल्प आउट करती है। सो व्हेन थिंकिंग अबाउट द प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट, इमेजिन यू आर अ फिजिशियन डिस्कसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट विद अ पेशेंट। सो अब देखें, अगर टेस्ट तो पॉजिटिव है, हाउ लाइकली इज इट दैट ही रियली हैज़ द डिजीज़। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वाकई ही उसको डिजीज़ है, दिस इज़ नोन एज अ पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। और अगर हमारे पास टेस्ट नेगेटिव है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वाकई ही ये जो पेशेंट है इसको डिजीज़ नहीं है। बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे कोई भी टेस्ट जो होता है वो 100% सेंसिटिव और 100% स्पेसिफिक नहीं होता। तो अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, वो फॉल्स पॉजिटिव भी तो हो सकता है, उसको डिजीज़ ना हो लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आ गया हो। और द अदर वे राउंड, अगर टेस्ट उसका नेगेटिव है तो हो सकता है वो कि फॉल्स नेगेटिव हो, उसको डिजीज़ हो और वो टेस्ट उसका नेगेटिव आ जाए। तो ये पॉसिबल है, बिकॉज हमारे जितने भी टेस्ट हैं अभी तक वो 100% या परफेक्ट टेस्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा कि कोरोना की एग्जांपल ले लें, कोरोना की सेंसिटिविटी टेस्ट की जो हमारे पास वैल्यू है, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है, वो 65 to 70% है। तो बाकी जो डिटेक्ट करता है वो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव डिटेक्ट करता है। तो इसी तरीके ये जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है, ये प्रोबेबिलिटी शो करती है कि अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो कितने % चांसेस हैं कि पेशेंट को वाकई डिजीज़ है, और अगर टेस्ट नेगेटिव है तो कितने % चांसेस है कि पेशेंट को वाकई ही डिजीज़ नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। देन हम मूविंग फॉरवर्ड, ये एक टेबल, अगर आज की वीडियो में आपने कोई सीखना है या आज के लेक्चर से आपने कोई
फ़ायदा हासिल करना है तो ये एक स्लाइड अगर आप याद कर लें, मैं रट्टा नहीं, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि व्हेन आई डिस्कस अबाउट द odds रेशो और द क्रॉस प्रोडक्ट रेशो और द रिलेटिव रिस्क और द रिस्क रेशो, मैंने उन फार्मूलाज को मेमोराइज़ नहीं करवाया था आपको। मैंने एक कंसेप्ट दिया था कि ये इस तरीके इतना आसान है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या है, आपको सिनेरियो इंटरप्रेट करना आना चाहिए। सिमिलर टू डैट आज के भी लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ सिनेरियो के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। फार्मूलाज आपको वैसे ही हलवा हैं, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखें कि टेस्ट आपने हमेशा जब उस तरीके हमने कहा, जब ऑड्स रेशो रिलेटिव रिस्क रेशो हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वाई एक्सिस के ऊपर आपने एक्सपोजर लिखना है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट जब भी हम डिस्कस करते हैं ना, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर आपने टेस्ट लेना है, आइदर टेस्ट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड ऑन द एक्स एक्सिस आपने क्या लेना है, रियलिटी लेनी है, whether the patient have the disease or the not having the disease। so आपने ये वाई एक्सिस के ऊपर रियलिटी मतलब डिजीज़ ले लेनी है, यहाँ पे डिजीज़ लिख देना है, यहाँ पे हेल्दी लिख देना है, ठीक है, बिकॉज डिजीज़ वाले का पॉजिटिव आ जाएगा और हेल्दी वाला ज़ाहिर बात है कि वो नेगेटिव होगा, उसको डिजीज़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टेस्ट क्या है, यहाँ तो पॉजिटिव होगा टेस्ट, यहाँ नेगेटिव होगा। अब हमारे पास क्या है, एक पेशेंट है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि सिर्फ इतना याद रख लें, एक पेशेंट है उसका टेस्ट भी पॉजिटिव है और उसको डिजीज़ भी है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू पॉजिटिव। वन पेशेंट whose test is positive and also having the disease we will label as a true positive। स्क्रीनिंग टेस्ट हमने अप्लाई किया, फिर हमने इसको स्पेसिफिक टेस्ट अप्लाई किया, तो हमें पता लगा कि एक पेशेंट जिसका टेस्ट भी पॉजिटिव है और उसको डिजीज़ भी है, तो वो कहाँ पे आ गया, ट्रू पॉजिटिव के अंदर आ गया। एक पेशेंट जिसका टेस्ट तो पॉजिटिव है लेकिन उसको डिजीज़ नहीं है, एक पेशेंट जिसका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन डिजीज़ नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स पॉजिटिव, का मतलब उसको डिजीज़ नहीं थी, फॉल्सली उसका टेस्ट आ गया पॉजिटिव। अब देख लेते हैं, आगे चलें। एक पेशेंट जिसका टेस्ट भी नेगेटिव है और उसको डिजीज़ भी नहीं है, तो वो क्या है, ट्रू नेगेटिव है, वाकई उसको डिजीज़ नहीं है। और एक पेशेंट जिसका टेस्ट तो क्या कहते हैं, नेगेटिव है लेकिन उसको डिजीज़ है, तो फॉल्स नेगेटिव है, मतलब उसको डिजीज़ थी, टेस्ट हमारा इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था कि उसको डिटेक्ट कर सकता, तो वो जो पेशेंट था वो डिटेक्ट नहीं हो सका, तो वो हमारे पास क्या है, फॉल्स नेगेटिव। तो अब आपको ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव की अगर समझ आ गई, ये हमेशा इसी तरीके लिखे जाते हैं, इसी सीक्वेंस के अंदर। ट्रू पॉजिटिव बिकॉज ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक पेशेंट है उसको डिजीज़ भी है, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव है, तो ज़ाहिर बात है ट्रू पॉजिटिव ही आएगा। एक पेशेंट जिसका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन उसको डिजीज़ नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव के अंदर आएगा, क्योंकि टेस्ट ने उसको फॉल्सली पॉजिटिव दे दिया, एक्चुअली द पर्सन डू नॉट हैव द डिजीज़। And the second thing is that if the patient test is negative and also not having the disease, it will labeled as the true negative। And the last one is the if the patient have the disease but the test do not detected it, this is known as the false negative। अब ये जब आपको ये चार चीज़ें आ गई ना, तो फार्मूलाज याद करना हलवा चीज़ है, हलवा। किस तरीके के, हमारे पास अब देखें कि आपने जब ये 2x2 का टेबल इस तरीके ड्रा कर लिया, ट्रू पॉजिटिव भी क्वेश्चन में से देख के लिख लिए, फॉल्स पॉजिटिव भी, ट्रू नेगेटिव भी, फॉल्स नेगेटिव भी, अगर आपने करेक्टली लिख ली हैं तो आपका सिनेरियो हल हो गया। फार्मूलाज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जब आपने ये चीज़ें लिख ली फिर आपने क्या करना है, पहला बॉक्स याद रखें हमेशा सेंसिटिविटी के लिए, सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव को डिटेक्ट करती है, स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव्स को डिटेक्ट करती है। तो ट्रू पॉजिटिव वाला ये टेबल है, तो सेंसिटिविटी किसको डिटेक्ट करती है, ट्रू पॉजिटिव वालों को, तो ट्रू पॉजिटिव के नीचे आपने देखे सेंसिटिविटी लिख दिया। अब जो हमारे पास स्पेसिफिसिटी होती है वो किसको डिटेक्ट करती है, ट्रू नेगेटिव्स को डिटेक्ट करती है, तो आपने ट्रू नेगेटिव के नीचे ये स्पेसिफिसिटी लिख दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप देखेंगे इसके फार्मूलाज किस तरीके लगाने हैं। सेंसिटिविटी यहाँ पे लिख दिया, तो सेंसिटिविटी का एरो आपने यहाँ पे नीचे लगा देना है। इसका एक ये भी आप याद कर सकते हैं कि सेंसिटिव पीपल इजी टू गो इन द डिप्रेशन बाय द कमेंट्स ऑफ अदर्स, तो आपने इजी टू गो नीचे क्या कहते हैं, इसको एरो को ले जाना है, और दूसरी साइड पे इसके अपोजिट कर देना है, एरो को ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब देखें इसका फार्मूला क्या है सेंसिटिविटी का, ट्रू पॉजिटिव को आपने ऊपर ही रखना है, डिवाइडेड बाय द ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इसके अंदर कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ नीचे एरो लगाया, तो आपने बस जेन में ये याद रखना है, पहले आपने ट्रू पॉजिटिव लिखना है ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर यू राइट फॉल्स नेगेटिव,
प्लस ट्रू पॉजिटिव। बस इतना सारा ये आपका फार्मूला सेंसिटिविटी का हो गया। टेबल आपने ड्रा कर लिया, इस तरीके एरो आप इमेजिनेशन कर लेना कि एरो लगे हुए हैं, उसी तरीके आपका फार्मूला बन जाएगा। और सेकंड थिंग इज दैट स्पेसिफिसिटी के अंदर एरो ऊपर जा रहा है तो पहले ट्रू नेगेटिव न्यूमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये आपका स्पेसिफिसिटी का फार्मूला आ गया। अब पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के अंदर एरो आपने इस तरीके लगा देना है, ठीक है। ये सबसे आसान, रट्टा लगाने से बेहतर है, बंदा इस तरीके याद कर ले तो मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी याद रहेगा। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ है कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में एरो आपने इस तरीके लगाया तो उसी तरीके पहले जहाँ पे एरो का क्या कहते हैं जो टेल है ना वो आपने न्यूमिनेटर के अंदर लिख देनी है। ट्रू पॉजिटिव न्यूमिनेटर के अंदर आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फार्मूला है। आगे एक मैंने टेबल दिया है उसमें वो सारा एक किस्म का रट्टे लगा के लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इस तरीके करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के अंदर आपने क्या करना है कि एरो आपने इस साइड पर लगा देना है, यहाँ से एरो चलाना है, यहाँ पर लगा देना है। अब इसका फार्मूला क्या है, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय द ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब आगे चलते हैं, आगे आपको फार्मूलाज जब मैं दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ। अब देख लें, ये मैं आपकी बेसिस बना रहा हूँ। लेक्चर बहुत छोटा भी हो सकता है लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों हम स्क्रीनिंग करते हैं और क्यों ये स्पेसिफिसिटी कहाँ से वजूद में आई, सेंसिटिविटी कहाँ से वजूद में आई, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कहाँ से निकल के आ गई। तो ये अब हम डिस्कस करते हैं। सो अज्यूम डैट ये बंदे गिने, ये क्या कहते हैं मेल और फीमेल, मेल मेल फीमेल फीमेल, तो दीज आर द 10 पर्सन्स। आप एक दफ़ा इसको काउंट कर लें। अब ये जो येलो हेडेड है ये शो कर रहे हैं कि इनको डिजीज़ है। अब हम एक टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम एक टेस्ट करने जा रहे हैं, या तो वो आपको पता है टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो नहीं ना हो सकता, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब देखें कि टेस्ट जो है वो क्या करेगा। ये 10 बंदे हैं, 4 को डिजीज़ है, 1 2 3 4 एक्चुअली डिजीज़ है। अब हम एक टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा या नेगेटिव देगा। तो देखें क्या हुआ, उस टेस्ट ने जो डिजीज़ थे, परफेक्ट टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऊपर लाइन नोट कर लें, परफेक्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जो डिजीज़ पेशेंट थे उसको उन्होंने जनाब पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हमारे जितने भी डिजीज़ पेशेंट्स थे 1 2 3 4 1 2 3 4 उसने उसको पॉजिटिव दे दिया, और जितने भी जिनको डिजीज़ नहीं था उनको जनाब टेस्ट ने नेगेटिव दे दिया। ये परफेक्ट टेस्ट है इस, क्योंकि जिनको डिजीज़ होगी ये उनको सिर्फ पॉजिटिव देगा, जिनको नहीं होगी उनको नेगेटिव दे देगा। लेकिन हकीकत में कोई भी देयर इज़ अ नो सिंगल टेस्ट ऑन द अर्थ विच इज़ अ परफेक्ट टेस्ट। देयर विल बी द सम प्रॉब्लम्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट टेस्ट, और जिसकी वजह से हमारे पास सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वजूद में आई, ठीक है। तो ये देख लें कि जो डिजीज़ है परफेक्ट टेस्ट में क्या होता है कि जो डिजीज़ है उसको वो पॉजिटिव दे देगा, जिनको डिजीज़ नहीं है उनको वो नेगेटिव दे देगा। अब देखें कि हमारे पास कोई भी टेस्ट एक ऐसा नहीं है जो परफेक्ट टेस्ट हो। फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव हर टेस्ट में मौजूद हैं, उसी को हम फिर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी निकालते हैं ताकि हमें पता लग सके कौन सा टेस्ट कितना ज़्यादा स्पेसिफिक है, कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें हमारे पास जो टेस्ट हैं उनके अंदर क्या होता है। ये देखें 4 वही डिजीज़ वाले हैं। अब यहाँ पे देखें जिनको डिजीज़ थी 3 को तो उसने डिजीज़ यानी पॉजिटिव करार दिया टेस्ट ने, लेकिन ये देखें इस एरो, इसको क्या कहते हैं एरो को देखें ज़रा। अब ये इस पेशेंट को डिजीज़ है लेकिन हमारे टेस्ट ने क्या किया है, हमारे टेस्ट ने उसको नेगेटिव दे दिया है। तो ये मतलब हमारे टेस्ट जो आइडियल टेस्ट होते हैं वो हमारे पास परफेक्ट टेस्ट नहीं होते। उसके अंदर हमारे पास ये तो ट्रू पॉजिटिव आ गया, ये देखें ये 3 तो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव उसने दे दिया। ये जो एक हमारे पास लेडी है, इस लेडी को देखें, इसने उसको क्या किया है, फॉल्स पॉजिटिव दे दिया। इसको एक्चुअली डिजीज़ नहीं है लेकिन उसने क्या किया, इसको फॉल्स पॉजिटिव दे दिया। अब देखें कि इसको एक्चुअली डिजीज़ है लेकिन इसको उसने फॉल्स नेगेटिव दे दिया। डिजीज़ है लेकिन उसने उसको नेगेटिव दे दिया, तो हम इसको कहेंगे फॉल्स नेगेटिव। अब इसको देखें डिजीज़ नहीं है लेकिन इसको पॉजिटिव दे दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव आ गया। यहाँ से ये चीज़ें ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये सारी चीज़ें वजूद में आई हैं। अब देखें ये जो पॉजिटिव आ गया, ये तीनों हमारे पास क्या है, ट्रू पॉजिटिव है, बिकॉज इनको डिजीज़ भी है, टेस्ट भी पॉजिटिव है। तो ये कौन सा टेस्ट है, ये ट्रू पॉजिटिव आ गए। अब आगे देखें जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, उन पर्सनस को डिजीज़ भी नहीं है और टेस्ट ने उनको नेगेटिव दे दिया है, तो वो टेस्ट के अंदर उसको
हम क्या कहेंगे, ट्रू नेगेटिव कहेंगे। अब पीछे जो बच जाते हैं हमारे पास दो बंदे, ये इसको डिजीज़ थी, येलो हेड है, इसको डिजीज़ थी, लेकिन टेस्ट ने उसको क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स नेगेटिव। और इस लेडी को डिजीज़ नहीं थी लेकिन टेस्ट ने दे दिया पॉजिटिव, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स पॉजिटिव। तो एक्चुअली यहाँ से ये चीज़ें आई हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ परफेक्ट टेस्ट, जिसकी वजह से हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आते रहते हैं। आइडियल टेस्ट हमारे पास कोई भी अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो परफेक्ट टेस्ट हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखें ये परफेक्टली बैड टेस्ट की मैंने एग्जांपल दी हुई है, एक परफेक्टली बैड टेस्ट की यहाँ पे एग्जांपल है। देखें ये ऑरेंज हेड है, इनको डिजीज़ है 1 2 3 4, जो डिजीज़ है उनको उसने टेस्ट ने नेगेटिव दे दी है, और जिनको डिजीज़ नहीं है उनको उस टेस्ट ने पॉजिटिव दे दिया है। तो ये एक परफेक्टली बैड टेस्ट की एक एग्जांपल मैंने दी हुई है कि ये एक बैड टेस्ट की एग्जांपल है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जब भी किसी टेस्ट की मेजर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट, किसी भी टेस्ट की क्वालिटी मेजर करते हैं ना, तो वो इन 4 बेसिक चीज़ों के ऊपर करते हैं, ट्रू पॉजिटिव के ऊपर, ट्रू नेगेटिव के ऊपर, फॉल्स नेगेटिव के ऊपर और फॉल्स पॉजिटिव के ऊपर। इन द अदर वर्ड्स, इन्हीं ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव से हम स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी निकालते हैं। तो किसी भी टेस्ट की अगर क्वालिटी मेजर करनी हो तो हम कह सकते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर उसकी स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा होगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये हमारे पास असल में हम ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव को यूज़ करते हुए टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी निकालते हैं, और उसको हम फिर डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये वाकई टेस्ट अच्छा था कि नहीं था। आगे जाके आपको देखते हैं। अब ये 2x2 टेबल, 2x2 टेबल हम यूज़ करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में स्क्रीनिंग टेस्ट को डिस्कस करने के लिए। ऑन द वाई एक्सिस बताया आपको टेस्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ तो डिजीज़ होगी या हेल्दी होंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, टेस्ट भी पॉजिटिव है और पेशेंट को डिजीज़ भी है, तो ये है ट्रू पॉजिटिव। और अगर हमारे पास क्या कहते हैं टेस्ट भी नेगेटिव है और डिजीज़ भी नहीं है, पेशेंट हेल्दी है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू नेगेटिव। फिर देखिए हमारे पास क्या है कि इस लेडी को डिजीज़ नहीं है, हेल्दी है, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, फॉल्स पॉजिटिव में आएगा। अब इसको देखें कि इसको डिजीज़ है लेकिन हमारे पास टेस्ट इसका नेगेटिव आ गया, तो ये क्या चीज़ है, फॉल्स नेगेटिव है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक बंदा, इसी की एग्जांपल ले लें, ये पर्सन है, इसको डिजीज़ है, इसका टेस्ट भी पॉजिटिव है, तो ये क्या है, ट्रू पॉजिटिव है। ये लेडी है, इसको डिजीज़ नहीं है लेकिन इसका टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है, तो ये क्या चीज़ है, फॉल्स पॉजिटिव। फिर देखेंगे इस पर्सन को डिजीज़ है लेकिन इसका टेस्ट आ गया नेगेटिव, तो ये क्या चीज़ है, फॉल्स नेगेटिव। और ये लेडी है, ये हेल्दी है और इसका टेस्ट भी नेगेटिव है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगी, ट्रू नेगेटिव में जाएगी। अब ट्रू पॉजिटिव जिस तरीके A+B करते हैं, ऑल पॉजिटिव इधर लिख देंगे, C+D ऑल नेगेटिव इधर लिख देंगे। अब ये डिजीज़, जितने भी डिजीज़ के साथ पेशेंट है, मतलब A+C, तो ये ऑल डिजीज़ इधर आ जाएंगे, और B+D मतलब फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ऑल हेल्दी पेशेंट्स इस तरीके आ जाएंगे। ये बेसिक 2x2 टेबल जो मैंने तीसरी स्लाइड में आपको दिखाया था, ये वही टेबल है, बस इसको थोड़ी सारी प्रेजेंटेशन डिफरेंट दी हुई है। अब देखें ये क्वेश्चन है कुछ, हाउ ऑफन डज अ पॉजिटिव टेस्ट पिक अप पेशेंट विद द डिजीज़, हाउ ऑफन डज अ पॉजिटिव टेस्ट पिक अप पेशेंट विद द डिजीज़। ये अदर वर्ड्स के अंदर ये पूछना चाह रहा है कि हाउ सेंसिटिव इज टेस्ट एट पिकिंग अप द डिजीज़, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी भी पॉजिटिव टेस्ट की कि वो पेशेंट को पिकअप कर ले। तो ये हमारे पास सेंसिटिविटी का पूछना चाह रहा है कि सेंसिटिव हमारा टेस्ट जो है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है कि एक पेशेंट है, उसको डिजीज़ है, और अगर वो उसको पिकअप कर लेता है तो वो कितना सेंसिटिव है, ये वो पूछना चाह रहे हैं। सेकंड थिंग इज़ डैट, अब उसी तरीके आपने निकालना है, एरो को इस तरीके नीचे ड्रॉ कर दें, तो ट्रू पॉजिटिव न्यूमिनेटर में आ गए, और स्मॉल को देखें, ये देखें स्मॉल है, ट्रू पॉजिटिव ऊपर आपने न्यूमिनेटर में लिख दिए, और एक बड़ा एरो लगा देना, सर्कल लगा देना, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ऑल डिजीज़। ऑल डिजीज़ का मतलब है कि A और प्लस C को आपने दोनों को जब प्लस किया तो ये ऑल डिजीज़ आ गई, ये आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और ट्रू पॉजिटिव को आपने कहा न्यूमिनेटर में लिख दिया, तो ये आपका कौन सी चीज़ आ गई, सेंसिटिविटी आ गई। ठीक है, अंडरस्टैंड। मूविंग फॉरवर्ड,
अब देखें, अब स्पेसिफिसिटी का क्वेश्चन आ गया। हाउ ऑफन डज अ नेगेटिव टेस्ट पिक अप पेशेंट विदाउट डिजीज़। अगर एक पेशेंट है वो नेगेटिव है, इसकी एग्जांपल ले लें कि ये लेडी नेगेटिव है और वो अगर टेस्ट जो है उसको नेगेटिव ही करार देता है, तो ये क्या है, उसकी स्पेसिफिसिटी है। अब स्पेसिफिसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, स्पेसिफिसिटी का फार्मूला हमारे पास ये होगा कि ट्रू नेगेटिव न्यूमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। एरो आपने ऊपर को ड्रॉ करना है, तो ट्रू नेगेटिव इन द न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, ये दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफिसिटी का फार्मूला होगा। प्रिडिक्टिव वैल्यू का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप फिजिशियन हैं, आप बैठे हुए हैं क्लिनिक के अंदर, एक पेशेंट को आप टेस्ट लिख के देते हैं, उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब कितने % प्रोबेबिलिटी है इसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो वाकई ही इसको डिजीज़ है, ये है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। और एक पेशेंट है उसका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो अब कितने % प्रोबेबिलिटी है कि वाकई उसको डिजीज़ नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। अब ये प्रिडिक्टिव वैल्यूज़ के क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन इज़ अ डिजीज़ पर्सन पिक अप बाय अ पॉजिटिव टेस्ट। सो ये बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज़ अ प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट, कि क्या प्रिडिक्टिव वैल्यू है पॉजिटिव टेस्ट की, कि वो अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वाकई ही उसको डिजीज़ है, कि कितने % चांसेस हैं कि वाकई उसको डिजीज़ है। क्योंकि हमारे पास जब भी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको पता है कि वो ट्रू पॉजिटिव भी हो सकता है तो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। अब दोनों में से आपने टेस्ट लिख के दे दिया है, आइदर द पेशेंट डू नॉट हैव द डिजीज़ बट द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, तो फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। तो अब ये कितने % प्रोबेबिलिटी है, यही हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने % प्रोबेबिलिटी है कि वाकई ही उसको डिजीज़ है, तो ये क्या है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। द अदर वे अराउंड, एक पेशेंट है उसका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, अब कितने % प्रोबेबिलिटी, अब नेगेटिव उसका टेस्ट हो सकता है कि वो ट्रू नेगेटिव हो सकता है वो फॉल्स नेगेटिव हो, अब कितने % चांसेस हैं कि वाकई ही पेशेंट को डिजीज़ नहीं है, तो ये क्या है, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। आगे चलते हैं, अब एग्जांपल देख लें। ये वही वाली एग्जांपल मैंने शुरू वाली जो पर्सनस की दी हुई थी वो यहाँ पे ऐड की हुई है। ये 4 बंदे हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 बंदों को डिजीज़ है, हमने एक स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया, उसने 3 को पॉजिटिव दे दिया, ट्रू पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। एक जो लेडी थी उसको डिजीज़ नहीं थी लेकिन टेस्ट ने उसको पॉजिटिव दे दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये फॉल्स पॉजिटिव की कैटेगरी में आएगा। अब A प्लस बी करें, पॉजिटिव टेस्ट कितने आ गए, 3 + 1 4 आ गए। अब देखेंगे नेगेटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जो है वो नेगेटिव हैं। अब इसके अंदर से देखें कि ट्रू नेगेटिव कितने हैं। ये एक पर्सन है उसको डिजीज़ नहीं है, टेस्ट भी नेगेटिव, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हमारे पास ट्रू नेगेटिव जो है वो 5 आ गए। अब देखिए फॉल्स नेगेटिव एक बच गया, फॉल्स नेगेटिव कहाँ पे है, फॉल्स नेगेटिव ये है, ये एरो को देखें, मैंने यहाँ पे पॉइंटर शो किया हुआ है, ये एक पर्सन है उसको डिजीज़ है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है, तो फॉल्स नेगेटिव 1 आ गया। तो इस तरीके मैंने अब डाटा इंटरप्रेट कर लिया है। ये जो हमारे पास फर्ज करें ये एक सिनेरियो है, उसके अंदर ये चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, लाइनों में लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। तो यहाँ से मैंने आपको समझा रहा हूँ कि 3 पर्सन ऐसे हैं जो कि ट्रू पॉजिटिव हैं, डिजीज़ भी है, टेस्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन एक लेडी है उसको डिजीज़ नहीं है, टेस्ट पॉजिटिव है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव है। ठीक है, एक आ गया, ये 4 आपको समझ आ गई। देन वी हैव द ट्रू नेगेटिव। अब बाकी 6 बचते हैं, 6 का टेस्ट हमारे पास नेगेटिव है। ये देखेंगे ये ट्रू नेगेटिव है, ये भी ट्रू नेगेटिव है, ये भी ट्रू नेगेटिव है, ये भी ट्रू नेगेटिव, ये भी ट्रू नेगेटिव। 6 में से 5 जो है वो ट्रू नेगेटिव है, एक जो है उसको डिजीज़ है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ गया, तो वो क्या है, फॉल्स नेगेटिव है। तो देखें A + C जो होता है ऑल डिजीज़, देखें डिजीज़ कितने पर्सन है, 4 है, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव आया, पेशेंट को डिजीज़ है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया, तो 4 बंदों को डिजीज़ है, बाकी 6 हमारे पास क्या हैं, ये हेल्दी हैं, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव आया, पेशेंट को डिजीज़ नहीं थी, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो 1 यहाँ पे। यही मैथमेटिक्स है, ये B + D का फार्मूला जो आपने शुरू वाले मैंने आपको बताया था कंटिजेंसी या 2/2 टेबल में, ये वही चीज़ है कि C + D ऑल हेल्दी को शो करेगा। ठीक है, अब ट्रू नेगेटिव क्या है, 5 है। आगे देखिए हम फार्मूला लगा लेते हैं। सेंसिटिविटी का फार्मूला आपने लगाने के लिए क्या करना है, एरो को आपने नीचे ड्रॉ करना है, एरो को देखें नीचे ड्रॉ कर लें। तो न्यूमिनेटर के अंदर आपने क्या रखना है, 3 रखना है, डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो 3 + 1। हमारी जो सेंसिटिविटी निकली है वो कितनी निकली है, 75%।
और ट्रू नेगेटिव को क्या चीज़ डिटेक्ट करती है? स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी का क्या फार्मूला है? एरो को आप ऊपर ड्रॉ कर लें, उसकी जो टेल है ट्रू पॉजिटिव वो न्यूमिनेटर में आ जाएगी, 5 आ गया। यहाँ पे देखें कि 5 हमारे पास कहाँ पे आ गया? न्यूमिनेटर के अंदर आ गया। और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आएगा? 5 + 1, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये दोनों हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कितनी परसेंट इसकी निकली? 83% स्पेसिफिसिटी निकली। इस तरीके हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 2/2 टेबल से निकालते हैं। जिस टेस्ट की सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो टेस्ट उतना अच्छा होगा, जिस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो टेस्ट उतना अच्छा होगा। अब प्रीडिक्टिव वैल्यू, पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू किस तरीके निकालनी है? सिंपल, आपने एरो यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। जो छोटा सर्कल है वो शो कर रहा है कि ये न्यूमिनेटर में चीज़ आएगी, तो 3 न्यूमिनेटर में आ गया। जो बड़ा एरो है मतलब ये भी और ये भी दोनों प्लस करके लिखेंगे, तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमिनेटर जो हमारे पास आ गया ये ट्रू पॉजिटिव के अंदर ऊपर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा? ये न्यूमिनेटर भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो ये प्लस के साथ हम लिखेंगे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। सिर्फ एरो आप याद रखें, वो जो बेसिक स्लाइड आपको दिखाई थी, एरो आपने इस तरीके ड्रॉ करना है। जो टेल वाली चीज़ है वो उसको आपने न्यूमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में आपने दोनों चीज़ों को लिख देना है। सिंपल इज डैट। तो हमारे पास पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू 75% आ गया। ये रैंडम वैल्यूज ली हैं, इस वजह से रिजल्ट ऐसा आ रहा है। असल में रिज़ल्ट इस तरीके का नहीं आता, ये सिर्फ रैंडम वैल्यूज़ ली हुई हैं, इस वजह से देखें सेंसिटिविटी भी 75% है, पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू भी, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये रैंडम वैल्यूज़ हैं, इस वजह से ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू, तो एरो को आपने इस तरीके ड्रॉ करना है। तो एरो को जब आपने ड्रॉ करना है तो ट्रू नेगेटिव जो है यहाँ से एरो शुरू हो रहा है, तो टेल जो है उसकी वो ट्रू नेगेटिव जो है वो ऊपर आएगा, क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा? ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों आएंगे। तो ये देखें ये फार्मूला हमने लगाया, 5 न्यूमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गया? 5 + 1, तो हमारे पास रिज़ल्ट 83% आ गया। जब भी इसका रिज़ल्ट निकालते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, क्योंकि हम इसके जो रिज़ल्ट हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं परसेंटेज के अंदर, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है, लेकिन उस जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैंने आपको पहले बेसिक डायग्राम दिखाई थी, इस जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर एक रट्टा सिस्टम दिया हुआ है, या रट्टा सिस्टम ना भी कहें, डायग्राम ये भी अच्छी अगर समझा जाए तो। टेस्ट को देखें, ये बेसिक डायग्राम है। आज की लेक्चर से आपने कुछ सीखना है तो ये एक डायग्राम सीख लें, डेट्स ऑल, क्योंकि आगे कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, किस तरीके इंटरप्रेट करना है क्वेश्चन को, और ये डायग्राम, बाकी सारी तो फिर आपको पता है कंसेप्ट है। तो टेस्ट हमारे पास कहाँ पे आ गए? वाई एक्सिस, और डिजीज़ कहाँ पे आ गई? ऑन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए उसने ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब सेंसिटिविटी, ट्रू पॉजिटिव, सेंसिटिविटी हमेशा ट्रू पॉजिटिव को डिटेक्ट करती है। तो ट्रू पॉजिटिव हमारे पास देखें उस बॉक्स के नीचे सेंसिटिविटी लिखा हुआ है। अब सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है? एरो को नीचे ज़रा ड्रॉ करें, जिस तरीके यहाँ पे एरो नीचे ड्रॉ हुआ है, तो एरो को ज़रा नीचे ड्रॉ करें। तो ट्रू पॉजिटिव न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये आपका सेंसिटिविटी का फार्मूला तैयार हो गया। अब आपका स्पेसिफिसिटी का फार्मूला क्या है? एरो को ऊपर ड्रॉ करें, जिस तरीके यहाँ पे हुआ है। ये सिंपल है, कंसेप्ट बेस्ड स्लाइड है, एरो को ऊपर ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले आपने टेल जो एरो की आएगी उसको ऊपर आपने देखना है कि ट्रू नेगेटिव, ये याद रखना है कि टेल वाली जगह के ऊपर हमने हमेशा न्यूमिनेटर में आता है, और हेड वाली जगह पे आपके फिर डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें लिखनी है। तो स्पेसिफिसिटी का फार्मूला पढ़ें ज़रा, ट्रू नेगेटिव न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। देन वी हैव द पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू। एरो को आप राइट वर्ड ड्रॉ कर दें, ये एरो जनाब राइट वर्ड ड्रॉ हो गया, ये पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू लिखा हुआ है। अब पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू हमारे पास क्या है? अब जो एरो का देखें, ये एरो की टेल है, तो टेल हमारे पास क्या आ गई? ट्रू पॉजिटिव के अंदर आ गई। हेड के अंदर देखें, हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो दोनों चीज़ें आपने लिखनी है। ट्रू पॉजिटिव न्यूमिनेटर के अंदर आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव आ गया। ये आपका पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू का फार्मूला तैयार है। देन वी आर द नेगेटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू। एरो को आपने लेफ्ट साइड पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है, नेगेटिव वाली साइड के ऊपर। तो आपको हमारे पास क्या आ जाएगा? उसकी एरो की देखिए हमारे पास क्या है? टेल यहाँ पे है, तो टेल यहाँ पे, तो आपने ट्रू नेगेटिव को हमारे पास न्यूमिनेटर में लिखना है, और हेड वाली जगह पे दोनों चीज़ें मिला देनी है, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। यह आपकी नेगेटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू का भी फार्मूला तैयार है।
फार्मूला को रट्टा लगाने से बेहतर है कि अगर आप ये सीक्वेंस तैयार कर लेना तो फार्मूला आपको भूलेगा नहीं और ना ही आप कंफ्यूज होंगे, ना ही मिक्सिंग करेंगे। ये सिंपल एक वे है चीज़ों को तैयार करने का। देन वी हैव द लास्ट वन इज़ द प्रेवलेंस। प्रेवलेंस का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव डिनोमिनेटर में आता है और बाकी सारी चीज़ें चारों मिक्सअप करके डिनोमिनेटर के अंदर ऐड करके लिख देते हैं। ट्रू पॉजिटिव ये बस आपने रट्टा लगाना है। प्रेवलेंस का अगर आपने निकालनी है 2/2 टेबल से तो किस तरीके निकालते हैं, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव न्यूमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें मिक्सअप होके आएंगी। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को, पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देते हैं। तो ये जो प्रेवलेंस है इसको कम ही कैलकुलेट करने को देते हैं, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि 2/2 टेबल से हम एक्चुअली प्रेवलेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरीके, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव को न्यूमिनेटर में लिखना है, बाकी सारी चीज़ों को ऐड अप करके डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो ये आपके बेसिक स्लाइड है। आप अगर ये स्लाइड अगर याद कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सारी कैलकुलेशन इसी स्लाइड से होनी है। ये वही बेसिक स्लाइड है, आपको कहा था कि आपने याद करनी है। इस तरीके नीचे सेंसिटिविटी में एरो ट्रू पॉजिटिव, सेंसिटिविटी हमेशा ट्रू पॉजिटिव्स को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये आपने एरो सेंसिटिविटी का नीचे लगा देना है, स्पेसिफिसिटी के अंदर एरो आपने ऊपर लगा देना है, ठीक है। पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू में एरो एक इस तरीके लगा देने हैं, नेगेटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू में एरो इस तरीके। तो ये आपके फार्मूले इसी एरोस की मदद से ही फार्मूलेज आपके तैयार हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। ये यूएचएस का एक रीसेंट ईयर्स के अंदर यूएचएस का ये रीसेंट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, तो पास्ट पेपर के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन का। तो स्क्रीनिंग टेस्ट वाज डन। अब बेसिक जो बेसिक जो क्या कहते हैं हमारे पास है ना किसी भी क्वेश्चन का या सॉल्व करने का, वो उसकी इंटरप्रिटेशन मैंने ऑड्स रेशो और रिलेटिव रिस्क रेशो में भी आपको बताया था। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक है ना तो आपका आगे रिज़ल्ट भी ठीक आएगा, आप आगे फार्मूला भी ठीक लगाएंगे। अगर क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन गलत होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, सॉरी टू से दैट। आप फार्मूला भी गलत लगाएंगे, भरे आपने सफ़े पूरे पूरे भरे होंगे, लेकिन जब वो अंदर कैलकुलेशन ही गलत होगी तो कोई भी आपको नंबर नहीं देगा। तो चारों खानों में लिख तो कुछ भी सकते हैं, 1000 लिख दो, 200 लिख दो, जी मैंने फार्मूले भी सही लगाए थे, मैंने ये भी किया था। जब आपने इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया है तो हाउ कुड द एग्जामिनर गिव यू नंबर, सिंपल इज दैट। सो यू शुड correctly interpret the question and correctly place the data in the right place and the right number at the right place and then apply a right formula for a calculation, so the examiner gave you number। अगर इसमें से कोई भी स्टेप गलत हुआ तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो ये यूएचएस का पास क्वेश्चन है। इसके अंदर देखेंगे क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी करने के लिए 1000 पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट किया। अब यहाँ पे देखें, दी स्क्रीनिंग टेस्ट वाज पॉजिटिव इन 200 इंडिविजुअल्स। 200 इंडिविजुअल्स के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव था, मतलब 800 के अंदर वो नेगेटिव था। अंडरस्टूड सारी बात है कि 200 के अंदर पॉजिटिव है तो बाकी 800 कहाँ पे गए, मेंशन यूएचएस नहीं करता, बस वो आपकी ब्रेन का लेवल चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। ये C3 लेवल का क्वेश्चन है। तो ये 200 हमारे पास क्या कहते हैं पॉजिटिव आ गए, बाकी 800 कहाँ पे आएंगे, ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चले गए, ठीक है। आउट ऑफ विच ओनली 200 में से भी 70% वर पॉजिटिव फॉर द डिजीज़ ऑन द PCR। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है ना उसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है। अब आपको पता है PCR जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 99% है, 99.99% है। तो ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट शो कर रहा था कि 200 बंदे जो है ना वो 200 इंडिविजुअल वो पॉजिटिव हैं, लेकिन जब हमने स्पेसिफिक टेस्ट अप्लाई किया ना तो हमें पता लगा 200 में से 70% 70 बंदे ऐसे हैं, 70 पीपल वो हैं, इंडिविजुअल्स वो हैं जिनको वाकई ही डिजीज़ है और वो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव हैं। बाकी जो 130 आ गए, ज़ाहिर सारी बात है वो स्क्रीनिंग टेस्ट ने तो पॉजिटिव दिया था, लेकिन जब हमने स्पेसिफिक एक टेस्ट किया तो हमें पता लगा कि वो एक्चुअली पॉजिटिव नहीं थे। तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे, फॉल्स पॉजिटिव की कैटेगरी में जाएंगे। देन सेकंड आगे पढ़ें, वाइल 500 इंडिविजुअल्स वर फाउंड एब्सोल्युटली हेल्दी। अब देखें कि 800 क्या थे, 800 बंदे जो थे नेगेटिव थे, उनके ऊपर भी PCR किया तो उनके अंदर पता लगा कि 500 बंदे जो थे वो वाकई ही हमारे पास क्या थे, नेगेटिव थे, मतलब ये ट्रू नेगेटिव है। बाकी जो हमारे पास 300 बच जाएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, वो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव में जाएंगे। आगे मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने अब टेबल बना के आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके हमारे पास
इसको 2/2 टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना है और फार्मूलाज लगाने हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट आपने लिख दिया पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब डिजीज़ स्टेटस है, डिजीज़ है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी है या नहीं है, हेल्दी है। अब देखें 200 बंदे ऐसे थे। अब यहाँ पे आप ना 200 ना साइड पे एक तीसरा बॉक्स जो A+B होता है ना वो बना के लिख लें। 200 बंदे ऐसे हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव है। अब आगे देखें उसने क्या स्टेटमेंट दी है। 70 वर पॉजिटिव फॉर डिजीज़ ऑन PCR, मतलब एक स्पेसिफिक टेस्ट करके भी हमें पता लग गया कि वाकई ही इसको डिजीज़ है। तो ये हमारे पास किस में आएंगे, ट्रू पॉजिटिव में आ गए। अब 200 टोटल थे, 70 का कंफर्म हो गया कि वाकई उनको डिजीज़ थी। तो जो बाकी 130 आए वो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर डिफेक्ट है। आपको बताया हर स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर डिफेक्ट होता है। तो 70 को तो डिजीज़ उसने शो कर दी, लेकिन 130 जो थे वो फॉल्स पॉजिटिव आए। अब देखेंगे 800 बंदे थे, उनको 1000 थे टोटल, 200 को पॉजिटिव था, बाकी 800 रह गए। 800 बंदे ऐसे हैं जिनको डिजीज़ है ही नहीं, सॉरी उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। ठीक है, अब टेस्ट नेगेटिव आया तो वो ये नहीं बता सकता कि वाकई इसको डिजीज़ नहीं है। वो ट्रू नेगेटिव भी हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है कि 800 बंदा है, अब उसके ऊपर उन्होंने PCR अप्लाई किया है, वाइल 5 उसके अंदर PCR अप्लाई किया तो पता लगा है कि 500 बंदे को 800 में से वाकई ही डिजीज़ नहीं है। तो टेस्ट भी नेगेटिव है और वो हेल्दी भी हैं। तो हमारे पास वो क्या किस कैटेगरी में आएंगे, ट्रू नेगेटिव में। अब उसने 300 का मेंशन यहाँ पे नहीं किया हुआ, तो अंडरस्टूड सारी बात है। 800 में से 500 को हेल्दी है, बिल्कुल डिजीज़ नहीं है। हमारे एक PCR जो स्पेसिफिक टेस्ट है उसने हमें बता दिया है। तो 300 ज़ाहिरी बात है वो कहाँ पे जाएगा हमारे पास, वो फॉल्स नेगेटिव के अंदर जाएगा। क्यों फॉल्स नेगेटिव के अंदर जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसने 800 बताया था कि 800 बंदे को टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, लेकिन जब हमने PCR किया तो हमें पता लगा कि 500 बंदा तो इन ट्रू सेंस नेगेटिव है, उनको वाकई डिजीज़ नहीं है। लेकिन 300 बंदा ऐसे है जो फॉल्स नेगेटिव है, उनको डिजीज़ तो है, लेकिन हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो उसको क्या कहते हैं, फेल्ड हो गया डिटेक्ट करने के लिए। तो वो 300 हमारे पास कहाँ पे आएंगे, वो फॉल्स नेगेटिव के अंदर आएंगे। तो इस तरीके आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। अब ये जो वैल्यूज़ लिखनी है, वैल्यूज़ आपने लिखनी है ये इसी तरीके इंटरप्रेट करके लिखनी है कि 1000 इंडिविजुअल थे। मैं दोबारा बता देता हूँ, 200 थे जो ऐसे जो पॉजिटिव आ गए थे, तो 200 आप यहाँ पे ना साइड पे करके लिख लें। 70 ऐसे थे जो वाकई ही ट्रू पॉजिटिव थे, तो बाकी 200 में से 70 माइनस कर दें तो बाकी आंसर क्या आएगा, 130। 130 का फॉल्स पॉजिटिव, उनको डिजीज़ नहीं थी लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर फ्लॉ है, 130 उसने ना फॉल्स पॉजिटिव दे दी हैं। सिमिलर टू डैट एक स्क्रीनिंग टेस्ट था, ये देखें 800 जो थे वो नेगेटिव थे, 200 पॉजिटिव है, तो ज़ाहिर इट इज़ अंडरस्टूड डैट ऑब्वियस डैट के 800 नेगेटिव है। अब 800 नेगेटिव थे, जब उन 800 नेगेटिव के ऊपर हमने एक PCR टेस्ट किया तो हमें पता लगा कि 500 जो है वो वाकई ही इन ट्रू सेंस नेगेटिव है, तो वो कहाँ पे आएंगे, ट्रू नेगेटिव में। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट जब हमने किया था तो 800 नेगेटिव आए थे, PCR जब हमने किया तो 500 नेगेटिव आए, तो 300 कहाँ पे जाएंगे, वो 300 फॉल्स नेगेटिव है, मतलब कि उनको डिजीज़ तो है लेकिन हमारे पास क्या है कि डिजीज़ तो उनको है लेकिन उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, तो वो फॉल्स नेगेटिव में आएंगे। अब स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी को कैलकुलेट किस तरीके करना है, मैंने आपको बताया था ट्रू पॉजिटिव वाले खाने में आप क्या लिख दें, नीचे को डाउनवर्ड एरो लगाना है। तो फॉर एग्जांपल ABCD आप उसी तरीके कर लें। तो सेंसिटिविटी को देखें, एरो नीचे लगाएं तो टेल A आ गई और A+C जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। ये आपने वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, इस टेस्ट की सेंसिटिविटी है 18.91%। ये एक पुअरली एक सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है क्योंकि ये सिर्फ 19% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसके अंदर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव शो कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव द स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी के अंदर आपने याद रखना है कि हमारे पास वही एरो आपने ऊपर ड्रॉ कर देना है। तो टेल के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू नेगेटिव, डी ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, D+B। उसी तरीके आपने वैल्यू पिकअप की। तो इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी अच्छी है लेकिन सेंसिटिविटी कम है। कोई भी टेस्ट उस वक्त अच्छा होता है जब उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बोथ आर वेल, तब उसको हम अच्छा टेस्ट कहते हैं। आगे चलते हैं, ये एक आपका सिनेरियो हो गया, ये UHS ने दिया था, इसमें सिर्फ उन्होंने कहा हुआ है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी निकाले, तो मैंने भी सिर्फ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की कैलकुलेशन की है। आगे आप देखें ज़रा, अब ये हमारे पास एक दूसरा UHS का क्वेश्चन है। स्क्रीनिंग टेस्ट हमने अप्लाई किया हुआ है 100 केसेस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर। ठीक है,
100 केसेस ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस, नॉन केसेस एंड डायबिटीज़ मिलाइटस के, ठीक है। अब टेस्ट वाज फेल्ड टू आइडेंटिफाई 10 ऑफ देम, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाइड किया है 100 केसेस ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस के ऊपर। उस टेस्ट ने हमारे पास 10 को आइडेंटिफाई करने से इनकार कर दिया, या उसने फ्लॉ है उसके अंदर नहीं कर सका। तो 100 हमारे पास डायबिटीज़ मिलाइटस के कंफर्म्ड केसेस थे, तो हमारे पास क्या हो गया, 90 केसेस तो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव की कैटेगरी में आएंगे। ये उसी तरीके मैंने टेबल एक दूसरा ड्रॉ किया है, उसके अंदर देखें कि स्क्रीनिंग टेस्ट उसी तरीके आपने टेबल 2x2 कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अब वैल्यूज़ पुट करनी है। अब 100 थे डायबिटीज़ मिलाइटस के केसेस, 10 आइडेंटिफाई नहीं हो सके, तो 90 हमारे पास आइडेंटिफाई ज़ाहिर बात है हो गए। ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, कोई भी सारी डिटेल नहीं क्वेश्चन में देता, वो सिर्फ आपका जो लेवल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर थिंकिंग का, वो असेस कर रहे होते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें नहीं देंगे कि 90 को डिटेक्ट कर लिया, अच्छा 10 को डिटेक्ट नहीं कर लिया। वो एक चीज़ देंगे, एक चीज़ का दे दिया तो मतलब दूसरी चीज़ अंडरस्टूड सारी बात है वो कैलकुलेट हो जाती है। तो 100 केसेस थे डायबिटीज़ मिलाइटस के, टेस्ट ने 10 को आइडेंटिफाई करने से इनकार कर दिया, मतलब उसने उसको डिटेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू पॉजिटिव के अंदर हमारे पास 90 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 90 जो है वो हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए हैं। 10 हमारे पास क्या है, वो क्या कहते हैं, नहीं आइडेंटिफाई हुए, ठीक है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट है कितने के ऊपर अप्लाई किया है, 100 केसेस ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस के ऊपर अप्लाई किया हमारे पास, ठीक है। और फिर हमने द टेस्ट फेल टू आइडेंटिफाई 10 ऑफ देम। इसका ये मतलब है कि उन्होंने एक और टेस्ट भी किया उनके ऊपर, और क्या कहते हैं, हमने एक स्पेसिफिक टेस्ट किया हुआ था। इसका इस तरीके भी समझाने के लिए एक अलहदा वे से आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास नॉन पेशेंट थे, कितने, नॉन पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस 100 पेशेंट थे। हमने उनको पता था कि ये 100 को डायबिटीज़ मिलाइटस है, हमने स्पेसिफिक टेस्ट जो था उससे डिटेक्ट कर लिया था। लेकिन जब हमने स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया तो टेस्ट ने हमारे पास क्या किया, फेल टू आइडेंटिफाई 10 ऑफ देम। मतलब हमारे पास ट्रू पॉजिटिव जो थे वो तो हमारे पास 90 रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास टेस्ट क्या कहते हैं, ये थोड़ा पॉजिटिव के स्पेलिंग गलत हो गए, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव जो आगे आ जाएंगे हमारे पास वो 10 आ गए। कि हमारे पास जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनको डिजीज़ नहीं है, लेकिन उनका हमारे पास टेस्ट जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, पॉजिटिव आ गया। तो ये बातें आपने याद रखनी है। स्क्रीनिंग टेस्ट 100 के ऊपर अप्लाई किया था, फिर हमने एक स्पेसिफिक टेस्ट किया, उसने 10 को आइडेंटिफाई नहीं किया। मतलब हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट था ना, उसने थोड़ा सारा गड़बड़ की है कि 90 को उसने दे दिया है, पॉजिटिव दे दिया, ट्रू पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास जो फॉल्स पॉजिटिव है ना, उसने 10 ऐसे पेशेंट थे जिनको हमारे पास क्या कर दिया, फॉल्स पॉजिटिव दे दिया। आई अगेन रिपीट डैट, एक स्क्रीनिंग टेस्ट था, वो 100 बंदों के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, वो पॉजिटिव आ गया, सिंपल इज़ डैट। बाकी हमारे पास एक टेस्ट था स्पेसिफिक, हमने जब टेस्ट किया तो उसने 10 को आइडेंटिफाई नहीं किया। तो मतलब एक हमारे पास टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट, वो 100 आप यहाँ पे लिख ले, 100 यहाँ पे लिख दे। एक हमने फिर एक स्पेसिफिक टेस्ट किया, उसने हमारे पास क्या किया कि 90 को तो डिटेक्ट कर लिया, 10 को डिटेक्ट नहीं किया। तो मतलब 90 को डिटेक्ट कर लिया, वाकई उनको डिजीज़ थी, वो डिटेक्ट हो गए। जो 10 थे वो हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव की कैटेगरी में आएंगे। सेकेंड थिंग इज़ डैट, एक और टेस्ट है, वो 200 हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर हमने अप्लाई किया, हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो अब हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर हमने अप्लाई किया है, ऑफ होम 180 वर डिक्लेयर्ड हेल्दी बाय द टेस्ट। एक स्क्रीनिंग टेस्ट था 200 के ऊपर अप्लाई किया है, 180 वर डिक्लेयर्ड हेल्दी बाय द टेस्ट। तो वो हमारे पास एक स्पेसिफिक टेस्ट हमने दोबारा किया तो हमें पता लगा कि 180 जो है वो हेल्दी हैं। तो ट्रू नेगेटिव के अंदर क्या आएगा, 180 आ जाएगा, बिकॉज वो हेल्दी हैं और टेस्ट ने भी उनको हेल्दी डिटेक्ट कर दिया। मतलब नेगेटिव होगा तो ज़ाहिर बात है ना, हेल्दी होंगे। तो फॉल्स नेगेटिव जो 200 थे, 200 में से 180 तो आ गए ट्रू नेगेटिव, बाकी 20 कहाँ पे गए, 20 हमारे पास जो आ गए वो फॉल्स नेगेटिव के अंदर। बिकॉज 200 है तो 180 हेल्दी है, मतलब बाकी हमारे पास जो 20 है वो डिजीज़्ड है, लेकिन टेस्ट ने उनको हमारे पास डिटेक्ट नहीं किया, तो वो हमारे पास किस में आएंगे, फॉल्स नेगेटिव में आएंगे। ये UHS के क्वेश्चन हैं, ये थोड़े सारे हेर फेर करके दिए होते हैं, आपने बस इसकी क्या करनी है, इंटरप्रिटेशन ठीक करनी है। इस टेस्ट की मैं एक दफ़ा इंटरप्रिटेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास क्या कहते हैं कोई एम्बिग्विटी ना रहे। एक स्क्रीनिंग टेस्ट था, वो 100 के ऊपर अप्लाई किया गया
डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट के ऊपर, उसने क्या किया, टेस्ट ने हमारे पास फेल टू आइडेंटिफाई 10 ऑफ देम को वो आइडेंटिफाई नहीं कर सका, मतलब वो हमारे पास क्या कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव आ गया। बिकॉज अगर 100 केसेस थे, स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करते हम तो 100 ही आना चाहिए था। डायबिटीज़ मेलाइटस के 100 केसेस थे, तो डायबिटीज़ मेलाइटस के 100 केसेस थे, हमने स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया, हमें नॉन केसेस थे डायबिटीज़ मेलाइटस के, तो स्क्रीनिंग टेस्ट को सारों को डिटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास उसने सारे के सारों को डिटेक्ट नहीं किया, उसने 10 को डिटेक्ट नहीं किया, तो 90 को उसने डिटेक्ट कर लिया, तो मतलब वो ट्रू पॉजिटिव आ गया। लेकिन टेस्ट को 10 को उसने डिटेक्ट नहीं किया, वो फॉल्स पॉजिटिव की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट था, वो 200 हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई किया, 180 को उसने डिक्लेयर कर लिया कि वो वाकई हेल्दी हैं, तो वो ट्रू नेगेटिव के ज़ुमरे में आएंगे। और 20 जो हैं, ज़ाहिर सारी बात है, वो 200 के अंदर से 180 माइनस कर दें तो 20 रहते हैं, वो फॉल्स नेगेटिव, वो पेशेंट थे जिनको डिजीज़ तो थी लेकिन टेस्ट उनका नेगेटिव आ गया। अब यही वो बेसिक स्लाइड है जो आपने फॉलो करनी है कि ट्रू पॉजिटिव जब आपने इस तरीके टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, अब आगे आपने फार्मूला लगा के सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी निकालनी है। अब यहाँ पे देखें उसने क्या दिया हुआ है, सेंसिटिविटी निकालें, स्पेसिफिसिटी निकालें, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज़ निकालें। तो हमारे पास किस तरीके निकालनी है, ये जब आपने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर आपने उसी तरीके इमेजिनरी एरोज़ आप दिमाग में सोच लें, लेकिन फार्मूला लगाते हुए आप याद रखें, इसी तरीके आपने एरो लगा देने। ये टेबल वही है, बेसिक टेबल है, इसको आपने याद रखना है। अब ये मैंने क्या कहते हैं एरोज़ की मदद से और फार्मूलाज़ मैंने अप्लाई किए हुए हैं। ये फार्मूलाज़ देख लें कि फार्मूलाज़ किस तरीके अप्लाई किए हुए हैं, और इस तरीके मैंने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी निकालनी है, आपने भी इसी तरीके निकालनी है। फिर ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का वही फार्मूला है, वही चीज़ें हैं। ये वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर आप इनको कैलकुलेशन को देख लें, बिकॉज ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे करनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका बेसिक 2x2 टेबल ठीक बना होना चाहिए, आपने फार्मूले सही लगाने होने चाहिए, बाकी आगे कैलकुलेशन आपकी इंशाल्लाह ठीक ही आएगी। ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है और फिर नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लें और इसकी कैलकुलेशन देख लें कि मैंने फार्मूले ठीक भी लगाए हैं कि नहीं लगाए। ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं एक सिनेरियो हो गया। लास्ट सिनेरियो है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने आंसर जो है ये पहले ही लिखे हुए हैं कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी है, स्पेसिफिसिटी इतनी है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इतनी है, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इतनी है। अब ये देख लें, इसकी इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। 10,000 पीपल वर चेक फॉर देयर ब्लड शुगर लेवल इन द कम्युनिटी। ठीक है, 10,000 पीपल को हमने चेक किया ब्लड शुगर के लेवल के लिए। 60 टेस्ट वाज पॉजिटिव, 60 टेस्ट जो थे पॉजिटिव थे। आपने जो है ये 2x2 का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, 60 आपने लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, आगे कहता है 40 हैड कन्फर्म द डिजीज़, 40 को वाकई डिजीज़ है। 60 टोटल टेस्ट किए थे, 60 आपने यहाँ पे लिख देना है। ट्रू पॉजिटिव जो है या 40 को वाकई डिजीज़ है, तो ये किस में आएंगे, ट्रू पॉजिटिव में आएंगे। जो हमारे पास बाकी जो आ गए 60 टेस्ट पॉजिटिव इंडिविजुअल से, 40 को वाकई डिजीज़ थी, लेकिन बाकी 20 कहाँ से आ गए, वो जो 20 थे वो फॉल्स पॉजिटिव में आएंगे। 20 जो बाकी आएंगे, 60 टेस्ट पॉजिटिव इंडिविजुअल्स थे, 40 जो थे उनको कन्फर्म द डिजीज़, तो वो हमारे पास कितने आ गए, ट्रू पॉजिटिव आ गया। जो 20 आएंगे वो फॉल्स पॉजिटिव में, मतलब उनको डिजीज़ नहीं थी, हमारा टेस्ट ख़राब था, उसकी थोड़ी सेंसिटिविटी कम थी, उसने 20 को फॉल्स पॉजिटिव दे दिया, तो वो फॉल्स पॉजिटिव की कैटेगरी में आएंगे। अब आगे देखें, बाकी हमारे पास ये तो 60 आ गए, बाकी जो हमारे पास 9,914 टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट थे। अब 9,940 आप इधर लिख लें। ठीक है, उसके अंदर से वो कहता है कि 100 हैड द कन्फर्म्ड डिजीज़, उसमें से 100 बंदों को तो कन्फर्म्ड डिजीज़ है। अब देखें कि नेगेटिव रिज़ल्ट है हमारे पास 9,940, 100 को कन्फर्म्ड है डिजीज़, तो ये डिजीज़ है, लेकिन टेस्ट हमारे पास उनके नेगेटिव आ गए, तो मतलब ये किसकी कैटेगरी में आएगा, फॉल्स नेगेटिव की कैटेगरी में आएगा कि 9,940 पेशेंट्स का या इंडिविजुअल्स का जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया था, लेकिन वो कहते हैं कि 100 जो थे नेगेटिव वाले उनको वाकई में डिजीज़ थी, तो वो टेस्ट के अंदर मसला है, उनको डिटेक्ट नहीं कर सका, तो हमारे पास क्या है, ये फॉल्स कैटेगरी में वो 100 बंदे आएंगे, उनको डिजीज़ है लेकिन उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। बाकी जो बच गए 9,940 में से माइनस करें 100, तो 9,840 वाकई ही ट्रू नेगेटिव है। उसी तरीके आपने ये फिगर याद रखनी है, जब आपने 2x2 टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, आगे बहुत इजी है, आपने फार्मूलाज लगाने हैं। उसी तरीके आपने ट्रू पॉजिटिव को इस तरीके एरो नीचे लगा देना है सेंसिटिविटी के लिए, स्पेसिफिसिटी के लिए ऊपर,
अब पेपर में नहीं एरो लगा देने, ये इमेजिनेशन आपको बताना है कि आप फार्मूलाज़ को रट्टा ना लगाएं, आप फार्मूलाज़ को एक कंसेप्चुअल वेज में याद करें। तो इस तरीके आपने ये याद रखना है कि जब आप सेंसिटिविटी का फार्मूला लिखने लगें तो आप इस तरीके एरो को नीचे याद रखें कि ए न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय द ए प्लस सी डिनोमिनेटर में, यह आपका सेंसिटिविटी का फार्मूला हो गया। फिर स्पेसिफिसिटी का फार्मूला क्या है, डी न्यूमिनेटर के अंदर डिवाइडेड बाय द डी प्लस बी डिनोमिनेटर के अंदर, यह आपका क्या आ गया, स्पेसिफिसिटी का फार्मूला आ गया। पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू किस तरीके एरो इस तरीके लगाएं, ए डिवाइडेड बाय द ए प्लस बी, बाकी नेगेटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू डी डिवाइडेड बाय द डी प्लस सी, ये आपका फार्मूलाज आ गए। जिस तरीके ये स्लाइड है मैंने बार बार रिपीट इसलिए की हैं क्योंकि ये बेसिक स्लाइड्स हैं, एक इंटरप्रिटेशन और ये स्लाइड्स, बाकी हमारे पास कंसेप्ट ही है। अब ये मैंने सारी कैलकुलेशन की हुई है, आप भी कैलकुलेशन करें और आप इसके ज़रिए अपना रिज़ल्ट्स निकाल लें। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा और रिज़ल्ट्स आप देख लें, ठीक है। और ये आगे पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है मैंने। ये एक और क्वेश्चन है, इसकी इंटरप्रिटेशन आगे मैंने दी हुई है, आप इसको खुद ही ज़रा अप्लाई कीजिएगा। आगे मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन दी हुई है कि ये क्या कहते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ट्रू पॉजिटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, ट्रू नेगेटिव क्या है, फॉल्स नेगेटिव क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये आगे इसकी इंटरप्रिटेशन सारी दी हुई है। तो ये आप देख लीजिएगा एक दफ़ा, अपने आप को भी असेस करें कि वाकई हमने इंटरप्रिटेशन ठीक की है या नहीं, फिर इससे मैच कर लें। और ये बेसिक स्लाइड्स है जो सारों के अंदर अप्लाई होती है। ये सारी ये लास्ट क्वेश्चन की सारी क्या कहते हैं इन कैलकुलेशन दी हुई है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन डाटा सारा दिया हुआ है, आपने इसको देख लेना है। ये हमारे पास सिनेरियो है और ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। वीडियो को पॉज करके इंटरप्रिटेशन आप लिख लीजिएगा। फिर आपकी ये बेसिक स्लाइड है जो बार बार रिपीट हो रही है, ये आपने याद रखनी है। ये भी आपकी बेसिक स्लाइड है। इसके अंदर क्या है, ये एक कंसेप्चुअल है, ठीक है। अगर ये याद करें तो ये फार्मूलाज को रट्टा नहीं लगाना, लेकिन लिख इस तरीके दे के आप एरो लगा दें तो ये भी आपका कंसेप्ट बन जाएगा। फिर आगे ये उसकी इंटरप्रिटेशन है सारी, और ये उसकी कैलकुलेशन मैंने की हुई है। आपने ये कैलकुलेशन कर लेनी है फार्मूलाज लगा के। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी। आपने खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर देखना है कि टेस्ट आपका ठीक आया कि नहीं आया। अब 2/2 रेशो जो है, 2/2 टेबल जो है वो ये चीज़ें डिटर्मिनेंट करने में हेल्प करता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने वी डिस्कस अबाउट द ऑड्स रेशो एंड द रिलेटिव रिस्क, एंड नाउ वी डिस्कस द स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, पॉजिटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रीडिक्टिव वैल्यू। ये आपकी बेसिक स्लाइड है, इसको आपने नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच, होप यू विल अंडरस्टैंड।